Rahim, Assalamu alaikum. Students, we are at chapter number 4, and we are discussing different types of different definitions of gases related with the theories which has been given by different scientists. Okay, so in the previous class we have discussed about real gases derivation, how they were derived, what are the things which are required for the derivation of real gas, and we have compared the derivation of ideal gas and real gas, and we have seen examples of I guess one or two examples of real gases also. Fine, so today we are going to start let me have a look on that deviation of the gases, that there were two conditions at lower pressure and at higher pressure. The gases जो actually होती हैं, they deviate from the ideal behavior, and then we have seen this derivation, as you can see this derivation, and we have seen few of the numerical. I guess there was one numerical. So today we are going to start with the next topic, and next topic is about Dalton's law of partial pressure. And what is that? Dalton's law of partial pressure is actually, as you can see, it's about a partial pressure of different gases. And when we are talking about partial pressure, so it means that gases do have a pressure which they exert, but here we have to assume, and we have to just have a idea in our mind that we are talking about ideal gases. अगर हमें Dalton's law of partial pressure को exactly proper तरीके से जो है वो समझना है, सही है. So this is the condition. So condition for Dalton's law of partial pressure is it must obey, they don't chemically react with each other, and the gases must behave ideally. Fine, so ये होना चाहिए. Okay, सो इसका बहुत सिंपल सा है. इट इज़ वेरी इजी कि टोटल प्रेशर जो होता है इसको हम पी टी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं. पी टी इज़ इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, और it is written here according to PA, PB and PC. What does it mean? That all the gases we are giving them a name, 1, 2, 3 or ABC. So these are the name of the gases. So if we are going to sum all the pressures of different gases, so they are going to be equal to the total pressure of that total pressure of all the gases. Fine, so this is how we are going to calculate total pressure. And when we are talking about Dalton's law of partial pressure, so this is the स्टेटमेंट मैं आपको भी बता देती हूँ. सो दिस इज़ द formula of Dalton's law of partial pressure. Fine, this one. So the statement of that Dalton's law of partial pressure is that total pressure of a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of all the individual gases. Means that these all gases exert some kind of a pressure, they do have some kind of a pressure, and उसको हम partial pressure का नाम देते हैं of that individual gas. और अगर हमारे पास बहुत सारी different gases होती हैं, so वो equal हो जाता है आपके पास किस चीज़ के? total pressure के. Fine, and this is the example of a Dalton's law of partial pressure. As you can see, for example, they are saying कि suppose कीजिए कि you have a mixture of non-reacting gases. You have a mixture of non-reacting gases. In that you have कौन कौन सी gases हैं आपके पास? You have नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े नाइट्रोजन के हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं. प्लस कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन सपोज कीजिए ज़्यादा है, नाइट्रोजन इतनी है. फिर वो कह रहे हैं कि यू हैव अ 20% ऑफ ऑक्सीजन. आई एम गोइंग टू यूज़ ऑक्सीजन फॉर दैट पार्ट. इट इज़ अ 20%, so that's what I am writing here. Then you have a argon gas, and for argon gas I am going to use the yellow color, and argon का concentration जो है बहुत मिनिमम है, ठीक है. और फिर आपको कह रहे हैं कि 0.03% यू हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सी है, सही है. सो कह रहे हैं कि फ्यू ट्रेस्ड ऑफ नियॉन, हीलियम एंड क्रिप्टॉन. ट्रेसेस के मतलब कि वी हैव अ जस्ट बिट पार्ट ऑफ डिफरेंट गैसेज, एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट इन विद दैट पार्ट. फाइन, सो दे आर सेइंग कि दीज और गैसेस क्या होंगी कि आपके पास और भी वाटर पोल्यूटेंट वेपर्स भी और पोल्यूटेंट्स भी हैं. तो अगर हम इन सारी गैसेस का सम करना चाहें, और अगर हम इन सारी गैसेस को बात करना चाहें कि ये गैसेस क्या होगी, तो दे विल बी, हर एक गैस का अपना अपना पीए होगा. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का प्रेशर होगा, हीलियम का होगा, ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, और वो इक्वल होगा पीटी के, सही है. सो इधर आपके पास इन्होंने क्या किया है कि दे हैव जस्ट गिवन द वैल्यू, एंड दे हैव देन
सम अप कर दिया है तो इट इज़ इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इज़ इक्वल्स टू 750 mm ऑफ मर्करी. दिस इज़ व्हाट द यूनिट ऑफ प्रेशर एक्चुअली. सही है. सो ये आगे उन्होंने एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है और कुछ भी नहीं है. So that was the statement and mathematical expression. Now let me have a look on the relationship between partial pressure and number of moles of a gas. So let's we start with that part. Okay, this is how we are going to calculate it. So relationship between partial pressure and number of moles of a gas. This is the formula. PV is equals to nRT. What is that? It is because we are talking about ideal gas, so we have to start with that. PV is equals to nRT. Okay, for gas A we have PA. Or what we are going to apply actually, we are going to apply the formula for partial pressure. And for partial pressure of gas A, suppose कीजिए we are talking about gas A, so PA लिखोगे. And what is the main thing? We are talking about number of moles of A, so that's why I am putting here A. और बाकी सारा वैसे ही रहेगा. और हमें मालूम क्या करना है, पार्शियल प्रेशर करना है, तो V को आप इस साइड खुद ही ले आइएगा. ठीक है. सो इट्स अपॉन V. फॉर गैस B, PB इज इक्वल्स टू NB VRT अपॉन V. दीज आर टू इक्वेशन. एंड फॉर गैस C, PC इज इक्वल्स टू NC RT अपॉन V. नाउ इफ़ आई एम आस्किंग यू अबाउट द टोटल प्रेशर, सो व्हाट यू विल डू, you are going to calculate the partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of C. आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होंगी और आप पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस जो है वो मालूम कर लेंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स अगर नहीं दिए होंगे तो उसका मास इन ग्राम गैस का गिवन होगा, उससे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे और उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे ए के लिए. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी मालूम करेंगे, उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सी मालूम करेंगे, उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे. और वो आप फिर उसको फिर नंबर ऑफ़ मोल्स को क्या करेंगे, जैसे एन ए के मोल्स आ गए, एन बी के मोल्स आ गए, एन सी के मोल्स आ गए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा एन टी के, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स के. और उसको आपने फिर क्या करना है कि इस वाले फार्मूला में पुट करके पी वी इज इक्वल्स टू एन टी ओवर आर टी. आपके पास जैसे मैंने बताया कि आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आप सारे सम कर देंगे तो आपके पास ये आएगा. और आपने क्या करना है कि उसको मालूम कर लेना है पार्शियल टोटल प्रेशर अगर आपसे पूछा जाएगा. और डायरेक्टली अगर आपको मालूम करना हो, अगर आपको प्रेशर्स इंडिविजुअल गैसेस के मालूम हो गए तो आप सारे प्रेशर्स को सम करके भी टोटल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हों. ठीक है. अच्छा, अब आ जाइए करना क्या है. यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई हुई है कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर किसी चीज़ का मालूम करना हो, इन्होंने एक डेरिवेशन बताई हुई है. मैं आपके पास डायरेक्टली एक उसके ऊपर आ रही हूँ, फार्मूला बता रही हूँ, आप उसके ऊपर जाइए. फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, इंडिविजुअल गैस, कोई भी आपके पास गैस है उसके बारे में पूछ रहे हैं. तो आपने अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मालूम करना है तो वो किसके इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल ए की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर किसी एक चीज़ का पार्शियल प्रेशर मालूम करने को आ जाए तो आप उसको मालूम करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अ गैस और दैट गैस, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट गैस ए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. यू विल डिवाइड इट विद टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हम सब गैसेस के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने पीछे बताया, और मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2p pt, और pt मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ सारे टोटल प्रेशर्स को आप ऐड कर देंगे तो आप पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं. तो ये पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास, ये जो लिखा हुआ है ना ये चीज़. तो ये आपने इसको क्या करना है, ये टोटल प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, फ्रैक्शन. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप ए भी निकाल सकते हैं, आप बी पी बी भी निकाल सकते हैं, पी सी भी निकाल सकते हैं. ठीक है. सारों का हम मालूम कर सकते हैं. और रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस की बात करेंगे तो वो क्या होता है, तो वो भी देख लें यहाँ पर. वो क्या है आपके पास, लेट मी हैव अ लुक ऑन दैट. इसको कहते हैं आपके पास पार्शियल प्रेशर. देखें, ये आपके पास है 1 P1 और ये N1 है. ठीक है. और P1 अपॉन PT इज़ इक्वल्स टू N1 अपॉन NT. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे लग रहा है वो मिक्स ही हो रहा है. P1 अपॉन PT इज़ इक्वल्स टू N1 अपॉन NT. अगर आपसे अब यहाँ पे चलें ए कर लेते हैं क्योंकि हम एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ करें. और अगर आपको रिलेशनशिप पूछें तो आप क्या करोगे फ्रैक्शंस के साथ, आप PT को उठा के इधर ले जाओगे, यही होगा ना. तो ये रिलेशनशिप है. सही है. और अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे कि हम इस n की जगह
वी आर गोइंग टू पुट द फार्मूला कौन सा आएगा? फार्मूला हम डालेंगे मोल फ्रैक्शन वाला x के, वेयर x इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. सो आप सिंपल इस फार्मूला की जगह कह रहे हैं कि अगर आपको पुट करने को कहा जाए इस n की जगह आपने मोल फ्रैक्शन लिखना है तो आप इधर x पुट कर दें और ये आपके पास PT जो है वो वैसे ही रहेगा. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर. ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला था, सिंपल x लगा दिया है हमने उसकी जगह, किसकी जगह? n की जगह. ठीक है, अब आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. वी हैव एक्चुअली 4 एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्चुअली, एंड दीज आर कलेक्शन ऑफ गैसेज ओवर वाटर एंड रिस्पिरेशन एट हायर अल्टीट्यूड. थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ. सबसे मेन जो है ये, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वाटर, गैसेज ओवर वाटर की बात करेंगे तो ये हमें फार्मूला के अंदर यूज़ करना है. आपने एक बात नोट की होगी कि हमारी जो नॉर्मल प्रेशर होता है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इतनी नमी नहीं होती. लाइक कराची में नमी होती है, लेकिन सी साइड के पास अगर जाएंगे तो वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है. ठीक है, क्यों? वहाँ पर क्योंकि वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं. तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? हम सिंपल वो जो वहाँ वाला प्रेशर है, जो मॉइस्चर की वजह से प्रेशर है, अगर उस प्रेशर को माइनस कर दें, ठीक है, उस प्रेशर को अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैल्यू बता दी कि आपके पास जो नॉर्मली प्रेशर की वैल्यू होती है ना, वो होती है, सपोज़ कीजिए वो होती है 780 टॉर. ठीक है, मैं कह रही हूँ कि समंदर के पास जो आप गए हैं वहाँ पर टोटल प्रेशर जो आपके पास आ रहा है वो 780 है, लेकिन मुझे ड्राई गैस का चाहिए. तो आपको अगर आपको वाटर वेपर्स का प्रेशर भी पता है, फॉर एग्जांपल वो 20 है वाटर वेपर्स का प्रेशर, तो आप ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकालोगे? सिंपल जो टोटल मॉइस्चर वाला प्रेशर और ड्राई गैस का प्रेशर, जो टोटल प्रेशर, उसमें से वाटर वेपर्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, यही होता है. तो ये जो कलेक्शन ऑफ गैसेस ऑन वाटर है ना, इसका मतलब ही है कि हम सी साइड पे गए या हम किसी ऐसी साइड पे गए जहाँ वाटर वेपर्स भी थे, तो हम उस वाटर वेपर्स का प्रेशर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. नॉर्मली इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसका मेन वो है, क्या कह लें कि मेन इसकी एप्लीकेशन है. वो किस तरह से कैलकुलेट होता है? दिस इज़ द फार्मूला. PT is equals to P gas plus P water. P gas is actually a dry gas, P water is the pressure of water vapors and PT is the total pressure. ठीक है, तो टोटल प्रेशर जब होगा वो इक्वल किस चीज़ के होगा? गैस के प्रेशर के, जो ड्राई गैस है एंड प्लस वाटर वेपर्स हैं. और अगर आपसे ड्राई गैस इधर लिखा नहीं हुआ, लेकिन बेटा आप लोग यहाँ ड्राई गैस खुद ही लिख लें, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी आगे यूज़ होनी है. ड्राई गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर्स. आगे इसके वाटर वेपर्स भी लगा लीजिएगा. सो द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज़ कॉल्ड एक्वस टेंशन. अच्छा, इसका दूसरा नाम इज़ एक्वस टेंशन, तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट इज़ रिस्पिरेशन एट हायर अल्टीट्यूड. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पार्ट? एज यू कैन सी एट हायर अल्टीट्यूड, जब आप ऊपर फ्लाई करते हो या हम लोग प्लेन में बैठे होते हैं या हायर एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि प्रेशर क्योंकि कम होता है तो वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है. तो प्लेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त भी कहा जाता है कि हो सकता है कि ड्यू टू द हवा में दबाव कम होने की वजह से, इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि आपके सामने मास्क जो है वो ऑक्सीजन मास्क गिर जाएगा. वाई? बिकॉज कुछ लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, एंड ये प्रॉब्लम कैप्टन्स के लिए भी कहते हैं कि उनको भी हो सकता है. तो इस चीज़ को कहते हैं, दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो उसके लिए क्या कहते हैं कि इस चीज़ को बताया जा रहा है. यहाँ पर एक डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है, और इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे ज़मीन के जाते जाएंगे आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे यू कैन सी गैस मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग. एज वी आर गोइंग डाउन दे आर इंक्रीजिंग, बट ऑन अ हायर लेवल दे आर डिक्रीजिंग. सो ड्यू टू दिस डिफरेंस, बिकॉज हमें जो नॉर्मली रहने की आदत है, जिस प्रेशर पे रहने की आदत है, वो वी रिक्वायर नॉर्मली 159. एंड कह रहे हैं कि हायर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज़ दैट. हाउएवर एट हाई एल्टीट्यूड एयर प्रेशर डिक्रीजेज, हैंस रिस्पिरेशन बिकम डिफिकल्ट. Pilot may have uncomfortable breathing in a non-pressurized cabin where the partial pressure of oxygen is about 150 cm3. तो मतलब this is the normal pressure and this is the pressure where जो आपके पास केबिन होता है उसका होता है. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बस बता रहे हैं, इसका कोई हल नहीं बता रहे, बस वही डिफरेंस बता रहे हैं. तो इस तरह के रीज़न्स आते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से रिस्पिरेशन वगैरह जो है उसके अंदर पायलट्स को प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा, हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे प्रॉब्लम है,
तो अगर समंदर के अंदर भी जो सी डाइवर्स होते हैं, दे ऑल्सो फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे हैव? सबसे पहले कि दे हैव अ, बिकॉज एज वी आर गोइंग डाउन द लेवल ऑफ द लैंड जो भी हमारे पास है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग. If the atmospheric pressure is increasing, so is it good for our health? The answer is no, it is not. And oxygen is a heavier gas. Fine, heavier gas in term of क्या, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो अगर प्रेशर नीचे ज़्यादा होता जाएगा, तो अगर बहुत हैवियर गैस हम लेके गए हैं तो क्या उसको आप इजीली इनहेल कर सकोगे? सो आंसर इज़ नो. नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा बॉडी नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी का प्रेशर तो इतना नहीं है ना, बॉडी का प्रेशर तो कम ही है, तो बॉडी एकदम से यूज टू नहीं होती है, तो उसके लिए हमें बहुत लाइटर गैस चाहिए ताकि हम उसको इनहेल कर सकें. सो नॉर्मली आपने देखा होगा जो सी डाइवर्स होते हैं, दे हैव अ टैंक, और उस टैंक के साथ उन्होंने एक मास्क लगाया होता है. इन दैट दे डोंट हैव ऑक्सीजन गैस, they have a mixture of different gases which are lighter in nature, so that if they are going down the sea level जा रहे होते हैं और डाइवर्स कर रहे होते हैं ये, so ताकि उनको ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो, वो लाइटर गैसेस को लेके जा रहे हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हीलियम के साथ गैसेस जो हैं उसको कंबाइन किया जाता है, क्योंकि हीलियम इज़ द लाइटर गैस. हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो है वो लाइटर मोस्ट गैस है. सही है. सो यहाँ अगर हम देखते हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं क्लियर कर दूँ जी. डीप सी डाइवर्स ब्रीथ, एक मिनट जी. डीप सी डाइवर्स ब्रीथ एयर अंडर इंक्रीज प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 40 meters. प्रेशर इंक्रीजेज 5 times देन द नॉर्मल प्रेशर. देयरफॉर रेगुलर एयर कैन नॉट यूज इन डाइवर्स टैंक. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज therefore deep sea divers used to breathe a mixture of 96% nitrogen and 4% oxygen in the respiratory tank. The scuba self-container breathing apparatus having oxygen used by divers. अब आप देखें कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 96% है. As diver return to the surface, it become hazardous to him to handle properly. As the divers come up, the pressure of the surrounding water drops. Consequently, compressed air in the lungs expand, surfacing. अच्छा, इसका मतलब क्या है ये मैं बता देती हूँ. फिलहाल यहाँ तक आप कंसनट्रेशन जो है इसकी याद रखें कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है ये लेके जा रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे हीलियम का मिक्सचर भी होता है, बट यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ है तो हम इसी को देख लेते हैं. हाउ डी सी, अब ये कह रहे हैं कि समंदर के अंदर तो चले गए, डीप सी वो गए, ठीक है, एंड दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द जो भी उनको गैस मिल रही है वो कर रहे हैं. तो कह रहे हैं कि जैसे ही वो वापस आएंगे ना, तो ऐसा थोड़ी है. अच्छा, नीचे लेके गए हैं वो कितने परसेंट नाइट्रोजन वाला, 96% नाइट्रोजन वाला. और हमारी नॉर्मली एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी होती है, इट इज़ 80%. और जैसे ही आप समंदर से अंदर आप गए हो तो आपने इतनी नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब की हुई है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आपके अंदर गई हुई है. अब आप जैसे ही ऊपर आए हो, सरफेस पे आए हो, तो वहाँ एकदम से नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो गई है. सो ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर डाइवर्स ऑल्सो. सो इसके लिए भी वो कहते हैं कि अगर ये इम्बैलेंसिंग कंटिन्यू रहे और एकदम से जो डाइवर्स ऊपर आते हैं वो सांस लेना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि एक कंडीशन होती है, बेंड्स कहते हैं उसको, वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं, डाइवर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है. ब्लड कैन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. तो कहते हैं कि इफ़ द ड्राइवर रिटर्न क्विकली एंड रिलेटिवली एट लो प्रेशर एट अ सरफेस, ही विल फेस अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन called bends. The diver must use different mixture of gases such as helium and oxygen or spend many hours decompression chamber after diving. तो कहते हैं कि होना क्या चाहिए कि आपको डिफरेंट, अब उनको जो डाइवर्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट किस्म की गैसेस जो है उनको इनहेल करना होता है ताकि उनकी जो बॉडी है वो जो कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की बॉडी में इतनी ज़्यादा इंक्लूड हो गई है वो कम हो सके. तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट गैसेस जो हैं उनको इनहेल करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन कम हो और ताकि वो नॉर्मल ब्रीथिंग जो है वो कर सकें, ठीक है. सो दैट वाज अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एंड हियर वी हैव अ न्यूमेरिकल ऑफ दैट of Dalton's law of partial pressure. It is very easy, but obviously मैं आपको समझा देती हूँ. 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. How many gases we have? We have 2 gases. कौन कौन सी gases हैं? We have nitrogen and we have 1 mole of nitrogen है, ठीक है, इसको हम AC से करते हैं, and we have 3 moles of hydrogen. हाइड्रोजन का केस थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि डिफरेंस भी रहे. आर इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, ओके, ऑफ वॉल्यूम
10 dm क्यूब। अच्छा, सपोज कीजिए कि 10 dm क्यूब है, 298 केल्विन। व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर मालूम करना है एंड टोटल प्रेशर मालूम करना है। करना क्या है आपने, ये दो गैसेज हैं तो अलग अलग मालूम करोगे। पहले इसका पी वी इज इक्वल्स टू NRT से इसको मालूम करें, नाइट्रोजन को। पी वी इज इक्वल्स टू NRT, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मालूम कीजिए। ठीक है, इसको उठा के इधर लाइए। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, R फिक्स्ड होगा, T फिक्स्ड होगा दोनों के लिए, और V भी फिक्स्ड होगा। इसका मैं ये नहीं समझाऊंगी, जो आपके पास लिखा हुआ है मैं वो समझा रही हूँ जो आपको करना है। ठीक है, आप वो देखना चाहते हैं आप देख लें, लेकिन आपकी बुक में भी आएगा, सॉल्व है ये, लेकिन फिर भी आपने PN2 मालूम करना है सेम, फिर आपने PH2 मालूम करना है विद द सेम फार्मूला, NRT अपॉन P, सॉरी P नहीं आएगा, V आएगा, और ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, पुट किया। नाउ यू हैव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस, यू कैन कैलकुलेट टोटल प्रेशर नाउ। एंड टोटल प्रेशर जब आप मालूम कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास क्या आ रहा है, पार्शियल प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पर इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने पी वी इज इक्वल टू NRT, पी टोटल मालूम किया है, एन टोटल करके, और फिर इसको लेके चलें। आप ऐसे करना चाहते हैं आप ऐसे कर लें, जो यहाँ पर है जैसे मैंने समझाया आप वैसे कर लें, आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है, ओके। नाउ हेयर कम्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, diffusion and diffusion. What is diffusion? Movement of a particle from higher concentration to lower concentration, or the spontaneous intermixing of molecules of one gas with another to give a at a given temperature and pressure is called diffusion. And examples are fragrance of roses, intermixing of ammonia and HCl, reddish brown bromine if a liquid ink is left in the bottom of the test tube. These are the diffusion. Describe the mixing of gases. ये आ रहा है, और साथ में आपको इंटरमिक्सिंग होती है इनकी। ठीक है, ये डेफिनेशंस आती हैं इनकी। इफ्यूजन क्या है? प्रोसीजर इज सेम, मूवमेंट ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पार्ट है और एक छोटा सा होल रह गया है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इधर से स्केप हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो यहाँ से स्केप हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रॉम अ होल if the molecules has a tendency, तो this is known as effusion. ठीक है, by in a region of low pressure is called effusion. This is the difference. एक small hole से अगर निकल रहे हैं तो effusion है, कॉन्सेप्ट सेम है। थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की पढ़ाई है इसलिए गया है। सपोज़ कीजिए कि यू हैव टू पर्सनस, एक आदमी है जो बहुत मोटा है। ठीक है, ये सपोज़ करेंगे आदमी है जो बहुत मोटा है ये। ठीक है, और एक आदमी है जो पतला है, ये है। और अगर मैं इनकी रेस लगवाती हूँ तो दोनों में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ये बंदा जो पतला होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा अपनी मंजिल तक। क्यों? बिकॉज एक हेल्दी बॉडी जो होती है, बहुत ज़्यादा मोटा इंसान जो होता है उसको अपनी वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पहुँच जाएंगे, स्पीड के ऊपर भी होता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है जो बताना चाह रहे हैं कि जितनी गैस हैवी होती है, सपोज़ करें अब हम इनको इंक्लूड कर देते हैं गैसेस से, जितनी गैस हैवी होगी उसका मूवमेंट उतनी स्लो होगी। दिस इज़ व्हाट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, के एज द मोलिकुलर वेट और द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इंक्रीजेज, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज़। स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी का मतलब ये है कि आपके पास रेट अगर आप मालूम करेंगे तो वो उसको आप लिखेंगे ऐसे 1/d। ठीक है, डेंसिटी कह दें, मास कह दें, टाइम से भी इसको रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ हम डेंसिटी इज इक्वल्स टू, वी नो वेरी वेल, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, तो मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, मास कम तो डेंसिटी कम, ये है। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन रेट एट विच टू गैसेस मिक्स, इफ्यूजन रेट एट विच gas escape through a pinhole into a vacuum. In both the cases, rate is inversely proportional to the square root of mw. mw means mass and mass in gram of the gas. Rate is inversely proportional to both the things. इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, rate is inversely proportional to m, और इस m की जगह आप w भी लिख सकते हैं। फॉर टू गैसेस अगर हम बात करें तो एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। ओके, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको।
देखिए, बल्कि ये की हुई है यहाँ पे, रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और डी। एंड अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाती हूँ तो मैं यहाँ के लिखूँगी, ठीक है। सो अगर मुझे के को अलग करना है तो फिर ऑब्वियसली मैं इस अंडर रूट डी जो है, ऑब्वियसली जब ये दूसरी साइड जाएगा तो d/1 हो जाएगा, और अंडर रूट इसको मैं इस साइड ले आऊँगी तो ये हो गया, ठीक है। अब नाउ वी हैव, सपोज़ कीजिए कि वी हैव 2 गैसेस, R1 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, तो इसका 1 क्रॉस ही होगा ना, ऐसे ही होगा। तो इसी तरह अगर R2 लिखोगे तो उसका इस तरह से क्रॉस लिखोगे। ये आया कैसे है, ये ऐसे आया है, रेट इज़ इक्वल्स टू K1/D1। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए कि हम 1 गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस K को इस साइड रहने दूँ तो K इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा R1/D1 ऑब्वियसली। इसी तरह अगर मैं सेकंड गैस की बात करती हूँ, कोई और गैस है, तो उसका क्या होगा, R2/D2। और अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मली कि आपके पास अगर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं ना कि R1, अगर मैं इसको उठा के इसी साइड पे, मतलब इसी की तरह लिख लूँ, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करती हूँ तो कंपैरिजन में ये भी तो आ सकता है, R1/√D1 इज़ इक्वल्स टू R√√2D2। और अगर मैं रेट्स को दोनों को एक साइड पे करती हूँ तो R1/R2 इस साइड आ जाएगा, तो जब ये D1 इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो बताने का मकसद क्या है कि R1 के सामने D1 नहीं लिखना, R1 के सामने D2 लिखना है, क्रॉस में लिखना है हमें इनको, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला एंड दिस इज़ द फार्मूला, जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्रॉस इस तरह होगा। सो उसके बाद क्या है, करना क्या है कि अच्छा ये याद रखिएगा कि इस रेट को आप इसके इक्वल भी ले सकते हैं, फ़िलहाल यहीं तक रहेंगे, इसको ऐसे लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आ सकता है जिसके अंदर वॉल्यूम पर टाइम यूज़ हो सकता है, ठीक है। सिंस वॉल्यूम इज़ द सेम, सो यू कैन राइट R1 is equals to Vm/T1 and R2 is equals to Vm/T2 एंड नेक्स्ट वी हैव R1। इसके साथ ये सारे फार्मूलाज बताने का मकसद ये है क्योंकि न्यूमेरिकल करना है, तो ये सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, जो स्टार्ट पे मैंने डेंसिटीज़ के साथ बताया है वो भी होगा, ये भी सही है, इज़ इक्वल्स टू M2/M1। ये फार्मूला भी नोट कीजिए, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, R1/R2 इज़ इक्वल्स टू T2/T1, ठीक है। और एक फार्मूला ये है, R1/R2 इज़ इक्वल्स टू D2/D1। ये सारे फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे जब हमारे मतलब की बात होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ, ये आपके पास आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, आगे आपके पास ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये मैं सिंपल बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो कहीं भी जहाँ पे जो चीज़ ये ज़रूरत मिलेगी, ये सारा एक ही फार्मूला को एक ही बना के लिख दिए, लेकिन एक्चुअली ये हमें पिक करना होगा कि इनमें से हमने कौन सा फार्मूला लेना है, ठीक है। सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका देख लें, ये आ रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड SO2, this is one gas, this is second gas, are confirmed in a porous container. What would be the comparative rate of diffusion? They are asking rate of diffusion, and what they are giving us, they are giving us two gases, HCl and SO2. Firstly, you are going to calculate molar masses of both the gases. One is 38 and second is 64. So you are going to calculate rate of diffusion, like you are going to calculate R1 and R2, and you are given M2/M1 and how you are going to put the formula. So normally हम कहते हैं कि जो आपके पास सेकंड नंबर पे गैस आ रही है ना, जैसे SO2 यहाँ पर सेकंड नंबर पे है, तो उसको 2 मान लीजिए, ठीक है। सो आपने 64 ऊपर रखना है, 36.5 नीचे रखना है, आपने कैलकुलेट करना है, आपके पास आंसर आएगा, और आंसर आएगा ये, जिसके अंदर हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर R1 लिखा हुआ है ना, तो 1 हम कह रहे हैं 1 इज़ फॉर HCl एंड 2 इज़ फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ फॉर SO2। सो आपने जब कैलकुलेट किया तो आपके सामने जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 1.33/1 इसके सामने, ठीक है। सो यू विल से कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज़ 1.33 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, ठीक है। आंसर मतलब R1 के सामने जो आंसर आएगा वो SO2 का आएगा, लेकिन होगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, सही। सो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था छोटा सा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।